Hello, 1, 2, 3. सही है। चलो बैठते हैं। लोग कम होते जा रहे हैं, क्या सीन है? Okay, last time we were talking about KMAP. Uh, so today we are going to talk about prime implicants. Then another topic we'll talk about later is don't care. And so let's first talk about prime implicants. So basically, prime implicants are, let me give you an example. Uh, Say for example, if this is the K map, I'm not writing the sides on the top values, and this is the K map. So a prime implicant is uh, maximum or largest covering that you can make. Largest covering. For example, I can make this 4 1. This is the largest one. Inside this, there are smallest ones also, one individual also. But 4 combined, we know that when we combine 4, we lose 2 littles. And that term simplifies and kills 2 littles. याद है ना ये सब कुछ, right? So we don't, we want to find bigger and bigger uh, coverings in order to find a minimal expression. So what some other example are these? I cannot take this one alone because it has a cousin. So I have to combine this. I want to find smallest possible circle. It's an engineering problem. So engineering problem doesn't necessarily mean a right answer is the correct solution. Sometimes engineering problem means a right answer with the minimum possible resources is the correct solution. All other solutions are wrong. So here I have 5 prime implicants. I cannot find bigger one, and I cannot combine this take this as one alone because that will not be a prime implicant. Prime implicant is the one which covers maximum number of ones. So that is called prime implicant PI. So how many PIs are there? 5. This is
this 2, 3, 4, 5 PIs are there. So number of PIs. Now there is a concept of essential PI. Which basically means that you try to find a covering or a prime implicant which has only one circle around it. That means that is going to be the part of your function. That is going to be part of your function. Whatever you implement, that must be there. So for example, this one is an example case in point. This one has only one circle around it. So I say that I have to take this. So if I let go ahead, I will going to write this A, B, complement, complement B, A, B, A, C, complement, C, complement, D, complement, C, complement, D. So what is this term equal to? What is this term equal to? A dash BC, A bar BC. So this term is A bar BC. अगर मैं अकेला लेता तो मुझे क्या मिलना था? A bar B C D complement, which is much more difficult to implement than this. सिर्फ अकेले से ये बेहतर है implement करना. So this is an essential prime implicant because it has a one which has no circle around it. Similarly, if I take this one, then I take this also. Because once I take this one, these two ones I don't have to worry about again because they will be part of the function. These two terms are included in this two, in the is this prime implicant. Included है ना वो वाले term. इसी तरह इसमें भी दो टर्म कॉमन है, कैंसिल हो गई है. क्या कैंसिल हो रहा है? A complement C D, C complement D. So this is equal to A complement C complement D. So ये भी टिक, अब इसको अगर मैं टिक करूं, this ये किसके बराबर है? Anyone? किसके? What is this equal to? ABC complement. Finally, what is this equal to? आप बताएंगे, अकेले बैठे हुए हैं. इधर ही है ना आप? ये क्या है? मोबाइल तो नहीं पकड़ा हुआ? जो वो इतना महंगा तरीन लम्स का प्रोफेसर आपको पढ़ा रहा है और मोबाइल लेके, सबसे ज्यादा जीनियस प्रोफेसर, लाइक प्रोफेसर, और आप मोबाइल फोन पकड़ के बैठे हुए हैं. रिसोर्स, कितने अफसोस की बात है ना वैसे ये इनकी. सारे इनके लिए करें जरा. तौबा तौबा, इतना महंगा प्रोफेसर पढ़ा रहा है आपको. पूरे पाकिस्तान में आपको इस का प्रोफेसर नहीं मिलेगा और आप बैठ के मोबाइल फोन पे काम कर रहे हैं. व्हाट इज दिस इक्वल टू? अब नहीं ना पता आपको? हाँ जी, ACD. When I include this in function, my function becomes equal to F is equal to A complement B C plus A complement C complement D plus A B C complement plus ACD. Now comes this one over here. ये लगाने से अब ये वाला जो है, ये क्या, इसमें कोई ऐसा वन है जिसपे टिक नहीं लगा हुआ? Since there is no one there that hasn't got a tick, so this is not an essential prime implicant. So by consensus theorem, I don't need to add that in my final solution. These four terms are enough.
आई डोंट नीड। ललचा तो रहा है बहुत मेरा दिल के, ये चार यार दो टर्म कैंसिल हो रही हैं, दिल तो मेरा बहुत कर रहा है कि मैं इसको भी लेके आऊं किसी तरह से, बट अनफॉर्चुनेटली जब मैं उससे फायदा नहीं हो रहा मुझे। तो एक और एग्जांपल देखते हैं जल्दी से। थोड़ा इधर कर लेना था। ऑलराइट, ये वाली देखते हैं। तो अभी मैंने पढ़ाया था ना, तो मुझे याद है ये वाली एग्जांपल। तो कितने इसमें टोटल इम्प्लीकेंट कितने हैं? प्राइम इम्प्लीकेंट, इम्प्लीकेंट होता है, सॉरी, छोटे से छोटा जो बन सकता है वो बेशुमार बन सकते हैं। प्राइम इम्प्लीकेंट है जो बड़े से बड़ी कवरिंग जिसमें सारे वन हो, बड़ी से बड़ी कवरिंग जिसमें सारे वन हो। तो प्राइम इम्प्लीकेंट कितने हैं इसके अंदर? हाउ मैनी प्राइम इम्प्लीकेंट? आप थोड़ा इधर आ जाएं जरा, फिर ये कि मुझे ऐसे करके आपको नहीं दिखाना पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत ही वाइड एंगल कैमरा मेरा बन जाता है फिर जरा, थोड़ा सा। हाँ जी, इसमें कितने प्राइम एप्लीकेंट? 4 कितने लोग कह रहे हैं? दिखाएं कौन कौन से। येलो। ठीक कह रहे हैं? नहीं ना, सही कह रहे? हाँ जी। आप आए जी, आप बताएं, आपके करें कुछ। हाँ जी, आ जाए। ऑलराइट। 3। ये एक ही ब्लॉक करें ये वाला? एक ही ब्लॉक है, ये नेबर हैं एक दूसरे के, दे आर नेबर फ्रॉम सर्कल साइड। तो कितने बने हैं ये? ठीक है, कितने लोग कह रहे हैं ठीक है? हैं? ये मेरा नीला भाई है, ये इसको किसने बनाना था ये वाला? हाँ, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो ये बनने क्या है, तो फिर ये क्यों बना रहे हैं, ये बड़ा क्वेश्चन है ये। नहीं, ये नहीं पूछना, फंक्शन नहीं देखना आपने कि क्या फंक्शन में क्या बना रहा हूँ, आपने सारे प्राइम इंप्लीकेंट देखने हैं कौन से बन रहे हैं। ब्लाइंडली यू हैव टू लुक एट दिस एंड फाइंड आउट कि कौन कौन से बनते हैं। जो मैंने अभी ब्लू वाला बनाया, ये बनता है कि नहीं? इसमें क्या गड़बड़ है? बनता है ना? अब अगर मैं इसमें फंक्शन बनाने लगूं, तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको लेता हूं, ये लेता हूं, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट, ये सारे ही वैसे इंपॉर्टेंट है। ये ले लूंगा तो ये सारे टिक हो जाएंगे। तो ये किसके बराबर है, वहां से देख के बताएं। जब यूजुअली ये बाहर को जाता है ना, तो कंप्लीमेंट जरूर आएगा। क्या? ए डी कंप्लीमेंट। ठीक है, एग्री करते हैं सारे? क्यों भाई, ए डी कंप्लीमेंट, एग्री? मैं जानना चाह रहा हूँ, सारे हाथ खड़ा करने, जिसको नहीं समझ आई मैं बता दूं। एनी वन? ए डी कंप्लीमेंट। सो दिस वन इज ए डी कंप्लीमेंट, एंड व्हाट अबाउट दिस वन? इसमें कोई कंप्लीमेंट नहीं आना चाहिए, मेरा ख्याल है। आता आता है, हाँ आता है।
ए बार डी, ए बार डी। तो इससे जब मैं लेता हूं ये चारों वन हो जाते हैं, एक रह गया वन। अब ये वन जो है इसके गिर्द कितने सर्कल जा रहे हैं? दो। तो ये एसेंशियल है? ये एसेंशियल नहीं है। दोनों में दो ड्राइवर रखे हैं, क्या दोनों एसेंशियल है? गाड़ी एक ही है, ड्राइवर दो रखे हुए हैं उन्होंने, क्या दोनों एसेंशियल हैं? यही तो काम है, अगर नितिन तनखा वो दे रहे हैं, दोनों को क्यों दे रहे हैं? गाड़ी तो एक है, ड्राइवर तो एक बीमार हो सकता है। आप कह सकते हैं दोनों बीमार हो, लेकिन उसके चांसेस कम है बहुत ज्यादा। तो बेसिकली इतनी तनख्वाह वो एक एक्स्ट्रा ड्राइवर को दे रहे हैं, ठीक है ना? तो काश में वो ड्राइवर होता है, वो एक एक्स्ट्रा ड्राइवर को तनख्वाह दे रहे हैं। व्हाई आर दे पेइंग हिम सो मच फॉर फन? नो, इट्स जस्ट ट्राइंग टू मेक वन ड्राइवर नॉन एसेंशियल। एक तो इंक्लूड करना पड़ेगा। वेरी गुड, दैट इज गुड पॉइंट। बिकॉज अगर इसमें इंक्लूड नहीं करूंगा तो ये ए कॉम्प्लीमेंट डी है, ये ए डी कम, ये दोनों ठीक है। अच्छा, तो फंक्शन क्या होगा? प्राइम इम्प्लीकेंट तीन है, चार है। ए कॉम्प्लीमेंट डी, ए डी कॉम्प्लीमेंट, और ये वाला किसके बराबर है? ए बी सी। और ये वाला प्राइम इम्प्लीकेंट एसेंशियल नहीं, और ये किसके बराबर है? बी सी डी। अब आपसे कहते हैं कि फंक्शन इंप्लीमेंट करें, तो आप क्या फंक्शन इंप्लीमेंट करेंगे कि जो मिनिमम सर्किट को कवर कर सके, सारे वंस कवर करे, सारे वन कवर करे? तो आप कहेंगे जी कि एसेंशियल पीआई इनमें दो ही हैं, इनको ईपीआई इज 2। इनके बगैर कोई भी फंक्शन कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन तीसरे का चॉइस है हमारे पास। सो एफ इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट डी प्लस ए डी कॉम्प्लीमेंट प्लस, और आ जाएगा यहां पे, या मैं ये ले लूं विच इज ए बी सी, या मैं ये ले लूं बी सी डी। इन दोनों में से कोई एक ले लूं, फंक्शन सारे वंस कवर हो जाए। दोनों लेने की जरूरत नहीं है, दोनों ना भी लेना की जरूरत नहीं है। जब एक ले लेता हूं, दूसरा कंसेंसस थ्योरम से उसकी जरूरत नहीं रहती। तो जब मैं फर्स्ट दिन अगर मैं ये लेता हूँ, एबीसी ले लेता हूँ, अगर मैं एबीसी लेता हूँ तो ये वन कवर हो गया, ये भी कवर, ये दो दफा कवर हो गया, कोई मसला नहीं है। अब मुझे ये लेने की जरूरत नहीं। थोड़ा सा ये इसमें से टेक्निकलिटी है थोड़ी सी। एक और एग्जांपल देखें, उसमें आपको पता लगेगा कि ट्रूथ टेबल का फायदा। कि ये वाली एग्जांपल अगर देखें आप, ये भी लास्ट क्लास में किसी ने बनाई थी तो मुझे ध्यान में आई है, ये वाली। अब इसमें जो है ये देखें कि कितने प्राइम एप्लीकेंट्स हैं इसमें, 4। और एसेंशियल प्राइम एप्लीकेंट्स, एसेंशियल प्राइम एप्लीकेंट 4 ही होंगे इसमें, क्योंकि अगर मैं ये लेता हूं तो ये प्राइम एप्लीकेंट चाहिए मुझे, इसको और कोई कवर ही नहीं कर रहा, तो ये तो मुझे चाहिए। ये ले लेता हूं तो ये इसके लिए मुझे चाहिए, तो इसको मैं दोबारा यूज कर लेता हूँ। ए प्लस ए और ए आर ए इज इक्वल टू ए, सो नो प्रॉब्लम। और मैं फिर ये भी यूज कर सकता हूँ। और इसमें ये 3 दफा यूज हो रहा है, एंड देन आई कैन यूज दिस आल्सो। नाउ आई एम यूजिंग इट 4 टाइम्स, सो आई एम यूजिंग इट 4 टाइम्स। अगर मैं इसको 4 दफा यूज ना करूं तो मेरा तो बड़ा कितना महंगा मेरा सर्किट बनेगा।
by using this 4 times, this minterm is helping a lot. It is helping to simplify this, it is helping to simplify this, and it is helping to simplify this, all of them. अगर इसको एल्जेब्रिकली करना हो तो जरा थोड़ा मुश्किल करना पड़ेगा कि आपके पास, अगर आप एल्जेब्रिकली करें तो व्हाट विल यू राइट हियर दैट इन दिस केस अगर पांचों टर्म में लिखूं, पांचों मिन टर्म लिखूं, व्हाट आर द 5 मिन टर्म्स हियर, व्हाट इज दिस इक्वल टू? A complement, B complement, C D. What is this equal to? This min term, what is this equal to? A complement B, C complement D. Plus, what is this equal to? A complement B, C complement. और A B C D. और अब बीच वाली ये वाला देख ठीक है। ये अब ये बीच वाली रहेगी, ये किसके बराबर है? A complement B C D, which is है हाँ 7, ठीक है। तो दिस वन इसके साथ कंबाइन होगी तो क्या किल आउट होगा? बी और बी कंपोनेंट। अब मैं तो इसके साथ अगर आपको वो पता ना हो कि प्लस प्लस करने से आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो जेब्रिकली तो और सिंप्लीफाई हो ही नहीं सकता। ये ओनली वे टू नो इज कि आई कैन राइट इट अगेन। अब ये इसके साथ सिंप्लीफाई होता है, आई कैन राइट इट अगेन एंड आई कैन राइट इट अगेन। ये सारे मिला के किसके बराबर है? Let this be a x, all of this is function x, x or x or x or x किसके बराबर है? x के बराबर। तो यू कैन कंबाइन, लेकिन ये कि ये 4 दफा कंबाइन हो रहा है, ये इसके साथ कंबाइन होता है, ये इसके साथ कंबाइन होता है, ये इसके साथ कंबाइन होता है, ये इसके साथ कंबाइन हो रहा है। हर एक में एक एक टर्म का डिस्टेंस है। इसमें ए कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो रहा है, इसमें डी कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो रहा है, इसमें सी कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो रहा है, इसमें बी कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो रहा है। तो वैसे अगर आप इम्प्लीमेंट करें तो आपको ये सारा इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, और अगर आप इसको सिर्फ एक दफा यूज करें तो फिर ये इसमें बी कॉम्प्लीमेंट निकाल दें, फिर आपको करना पड़ेगा। लेकिन इसको जब 3 दफा यूज करते हैं आप देखेंगे बहुत सर्किट आपका छोटा हो जाएगा, बिकम वेरी स्मॉल। So this use of this 4 times is very clear in this kind of K-map. Otherwise, it will be difficult to figure out कि यार ये कहाँ पे use होना है। फिर नहीं कर सकते, फिर तो सारे अकेले अकेले रह जाने। We couldn't have done anything about it. Now let's see another one. तो चले चल जाएगा ना ऐसे? हाँ जी, कौन है जो इसमें आके वंस लिखेगा? रैंडम रैंडम वंस, चले वो आ रही है, इनके लिए ढेर सारी तालियां।
ठीक है, लगा दें तो can't say anything और नहीं ऐड करनी बस काफी। राइट ठीक। इट इज वेरी गुड। अब इसमें बताएं कि प्राइम इम्प्लीकेंट्स कितने हैं। उस वक्त आपने फंक्शन का नहीं सोचना कि मैं फंक्शन क्या बना रहा हूँ। क्वेश्चन इज टू फाइंड ऑल द प्राइम इम्प्लीकेंट्स, देन विल फिगर आउट कितने एसेंशियल हैं, और फिर देखेंगे कि फंक्शन किस तरह से कर लें कि सारे कवर हो जाए सारे। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स आल्सो। दिस डेफिनेटली ये चीज आपको बताती है कि आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचना होता है। 6 कितने लोग कह रहे हैं? 5, 4 है, 4 वाला कोई नहीं। 5, 6 आप 4 कह रहे हैं? 6 आप कितने कह रहे हैं? आप कुछ नहीं कह रहे, 6 कह रहे हैं आप। 6 राइट। तो आप कितने कह रहे हैं? 5, 6 आप 6 कह रहे हैं? आप 6 कह रहे हैं, बताएं कौन से? हाँ, और उनको आने आ जाए, उनको आने जाए। मैं वो इशारा मैं करता हूँ, शायद वो मुझे लेजर पॉइंटर लेके आना चाहिए। एनीवे 1, 2, 3, 4, 5, 6 right। Right now next comes the challenge to find essential prime implicant। ये तो बेचारा अकेला है, अकेला। Don't cry, don't cry। So this is alone। राइट, सो इसको तो डालना ही पड़ेगा, कोई भी फंक्शन इंप्लीमेंट करें, इसकी कोई सिंप्लीफिकेशन भी पॉसिबल नहीं। इनमें से ये है कि अगर आप ये कोई एक ले लेते हैं ना, यहाँ से जो भी लिखे हुए हैं, तो उससे ज्यादा सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं। वंस यू के मैप में आप प्रोसीजर सही फॉलो कर लें, देर इज नथिंग सिंपलर दैट कैन यू कैन फाइंड, बिकॉज इट टेल्स यू कि क्या क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। सो one is this one, let's call this term k0। This is essential because no one is covering this, so we'll write pi is equal to 6। उनके नंबर भी लिख सकते हैं, अगर पूछा हो तो उनका नाम भी बताएं। ये ऊपर वाला किसके बराबर है? ए कॉम्प्लीमेंट बी के कॉम्प्लीमेंट सी डी, 6 ये वाला। और इस तरह से सबके आप लिख सकते हैं 6 के 6 के कौन कौन से टर्म्स हैं जो 6 के 6 जो बन रही हैं। लिख दूं या ठीक है? हैं? Right। So now the question is कि इनमें से बताएं कि एसेंशियल कौन सी है। एक तो ये एसेंशियल हो गई, तो फंक्शन जो बनेगा वो एक तो इसका होगा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी डी, तो ये तो कवर होगी। और कौन सी एसेंशियल है? बॉटम राइट, दिस वन। इसकी वजह से ये एसेंशियल है, विच इज बी कॉम्प्लीमेंट कैंसल ए सी डी कॉम्प्लीमेंट। दिस इज K1। और कौन सी कम है? ये वाली एसेंशियल है, जस्ट लाइक, तो ये दोनों कवर हो गए। इसकी वजह से ये भी कवर हो गया, क्योंकि ये जब मैंने इंक्लूड की K1 तो ये कवर हो गया।
ये वाला भी एसेंशियल है क्योंकि इसको भी कोई और नहीं, तो ये कवर किया तो ये 2 दफा कवर हो गया। तो दिस इज K2 विच इज इक्वल टू प्लस, ये किसके बराबर है K2, C कंप्लीमेंट D। तो अब ये रह गई एक, ये एसेंशियल नहीं है क्योंकि इसके लिए ये भी, इसने भी इसको घेरा डाला हुआ है और इसको इधर से भी घेरा डाला हुआ है। तो अब आप इन दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, दोनों एसेंशियल नहीं है, लेकिन फंक्शन पूरा करने के लिए आपको उनमें से कोई एक लेना पड़ेगा। अक्सर तो वैसे प्रैक्टिकली तो देखते हैं कि अगर कहीं आपने पहले ABCD कहीं से किसी एंड गेट की आउटपुट लगा रही निकाली हुई है, तो एक एंड गेट की आउटपुट 10 जगह जा सकती। तो अगर कोई बहुत बड़ा सर्किट है जिसमें एक आउटपुट पहले ही आपने कोई मिन टर्म आपने इसमें से निकाली हुई है, तो आप फिर वो यूज कर लेते हैं, अदरवाइज देर इज नो डिफरेंस, जो मर्जी ले लें, आपके लिए कोई फर्क नहीं, आप ना परेशान हो, आप इनमें से ये ले लें या ले लें, ये वाली ले लें या ये रेड वाली ले लें, ब्लू वाली ले लें या ये रेड वाली ले लें। कोई एक ले लें, या ब्लू या रेड, बोथ आर इम्पोर्टेंट। ऑलराइट, आगे चलते हैं, कोई और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेंसर प्राइम एप्लीकेंट की बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है ये वाली। हाँ ये वाली, अब बताएंगे इसमें कितने प्राइम एप्लीकेंट्स हैं। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, याद रखें, यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देयर वेयर यू नीड टू थिंक, अदरवाइज तो जिंदगी में हर वक्त देखना चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इज नीडेड। 8, 8, वेरी गुड, कितने लोग कह रहे हैं 8? ओ, तकरीबन सारे कह रहे हैं, तकरीबन, वेरी गुड। तो एक तो ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, एक ये वाले हैं, ये तो तीनों हैं, चौथा कौन सा है भाई? बॉटम वाला, वेरी गुड। अब इनमें से एसेंशियल कौन सा है? एक ही दे रहा है, इसमें एसेंशियल कितने? ईपीआई, ईपीआई हाउ मेनी? इसका ये मतलब नहीं फंक्शन इंप्लीमेंट नहीं हो सकता, जीरो है। ये एक कंपनी की 4 गाड़ियां हैं, उसके 8 8 ड्राइवर रखे हुए हमने, तो इसमें ये कि या तो मैं फंक्शन इंप्लीमेंट कर सकता हूँ सारे येलो लेके, या मैं सारे फंक्शन इंप्लीमेंट कर सकता हूँ सारे रेड लेके। रेड के फंक्शन इंप्लीमेंट करूं वो भी वही आंसर देगा, जो मैं येलो के हॉरिजेंटल कॉम्बिनेशन के साथ जो फंक्शन निकालूंगा वो भी वही आंसर देगा। तो दैट वे दे आर बोथ एग्जैक्टली सेम, ऑल्दो इन राइटिंग यू विल सी देयर लॉट ऑफ डिफरेंस। यहाँ से वो देख के वो एंड प्रॉब्लम बनाते हैं। अगर कभी आपने डीएलसी की अपनी बुक बनानी हो ना, कि जी लॉजिकली सिंप्लीफाई करके प्रूव करेंगे दिस इज इक्वल टू दिस, तो वो ये के मैप पे बैठ के सोचते हैं लोग कि अच्छा ये मैं लिख देता हूँ, आगे अलजेब्रिकली लिख देता हूँ कि ये प्रूव दिस इज इक्वल टू दिस। तो
वो जब अल्टीमेटली अगर आप उस सब कुछ दोनों साइडों को मिन टर्म में लेके जाते हैं, के मैप पे लेके आएंगे, तो वो दोनों का के मैप एक ही बनेगा। तो उससे पता लग जाता है कि दोनों सेम है। तो यू हैव टू एक्सपेंशन थ्योरम लगा के 4 में से 8 टर्म निकालें, गैलो की एक्सपेंशन थ्योरम लगाएं, इस टर्म में से ये 2 टर्म निकलेंगी, इसमें से ये 2 टर्म निकलेंगी, इसमें से ये 2 टर्म निकलेंगी, 8 टर्म हो जाएंगी। अगर आप ग्रीन रेड पे लगाएं फिर भी 8 बन जाएंगी, दोनों सेम होंगी। तो दिस इज हाउ दे मेक बूलियन अलजेब्रा। एंड प्रॉब्लम्स कैसे बनती हैं, अगर आपने कभी डीएलसी की बुक राइट करनी हो तो इस तरह से बनती है। और राइट, कोई और एग्जांपल? एक बड़ी पॉपुलर सी एग्जांपल है, वो ये वाली है। Just showing you because it may come across quite often in our this one. Although there are half of the terms that are one, but they are all terms are implicants, prime implicant, and essential prime implicant. There is no simplification possible. So whenever you see a two table like this, it is usually mean that it's two table for exclusive OR. Because exclusive OR में combine नहीं कर सकते आप दो terms को। हर दफा exclusive OR जो वन होगा जब एक से ज्यादा term वन होगी। ए कंप्लीमेंट बी प्लस ए, दो का डिस्टेंस होगा, ये एक्सक्लूसिव आ रहा है ना, दो का डिफरेंस है इसके अंदर, ये कंबाइन नहीं हो सकती, कोई कॉमन नहीं, कुछ नहीं। तो ये इस तरह से ये भी कंबाइन नहीं हो सकता, ये भी कंबाइन। सो दिस इज अ 3 इनपुट एक्सक्लूसिव आर का ये वाला आपको टेबल मिलेगा। एक और जो इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है वो आती है कि ये वाली चीज कि आपके पास एक गाड़ी है जिसके, इधर ही कर लो, इधर ही कर लेते हैं, चलो। एक गाड़ी है, उसके दो लोग उस पे जा सकते हैं और उसकी पॉलिसी ये आपने पूछी है, आप इंजीनियर हैं, आपने पूछा है उनसे कि आपने के सर्किट बना के देना है। जरा थोड़ा सीन समझ लें। एक गाड़ी है, उसके लिए आपने सर्किट बना के देना है ड्राइवर को, और उसमें दो मैनेजर बैठ सकते हैं, ए या बी। और ड्राइवर ने अगर ए बैठा है तो उसने ए का बंद कर देना है, अगर बी बैठा है बी का बंद कर देना है, अगर दोनों बैठे हैं दोनों बंद कर देने हैं। और बस उसी एलईडी से उसको पता लगेगा कि मैं ड्राइवर गाड़ी चलाऊं या ना चलाऊं। अगर एलईडी ऑन हो जाता है तो उसने गाड़ी चलानी है, अगर नहीं ऑन होता गाड़ी, बेसिकली आपने ये सर्किट एक बनाना है यहाँ पे, जिसके दो इनपुट्स हैं ए बी, और एक आउटपुट है जो कि बताती है कि गो। अब आपको मालिक से आपने पूछा भाई ये मैंने सर्किट बनाना है, पॉलिसी बनानी है, तो मुझे जरा बता दें कि दो मैनेजर हैं, एक फाइनेंस मैनेजर है एक एचआर मैनेजर है, तो कैसे चलाऊं। उन्होंने कहा कि 0 1 हो तो चला दे, बना दो सर्किट के, वो गाड़ी चलनी चाहिए। 1 0 हो तो वो कहता है बना दो सर्किट, गाड़ी चलनी चाहिए। फिर वो जाने लगता है, अब चलते चलते सर एक में ये दोनों 1 हो तो फिर मैंने क्या करना है, आई डोंट केयर। अब आप क्या करेंगे? हम पीछे से पकड़ के उसको कहते हैं कि सर अगर दोनों बंदे जाके गाड़ी में बैठ जाएं, हालांकि मालिक को पता है कि दोनों की आपस में लड़ाई है, दोनों इकट्ठे नहीं बैठ सकते, लेकिन अगर दोनों किसी वजह से ऐसे ही ईद वाले दिन इकट्ठे बैठ के नमाज पढ़ने जा रहे हैं, तो आप मालिक से पूछे अब क्या करना है ड्राइवर ने, तो क्या करेगा ड्राइवर? इसको करते हैं, इसको कहते हैं
इनकम्प्लीटली स्पेसिफाइड फंक्शन। पता नहीं सही स्पेलिंग है कि नहीं। स्पेसिफाइड फंक्शन, यहां पर वो इसको कह देते हैं जी एक्स है। इसका मतलब कि मालिक ने कहा डोंट केयर, आई डोंट केयर, जो मर्जी करो। ये दो के लिए तो है ना, तीन होते या चार होते तो कई केसेस ऐसे होने थे जिसमें वो कहता आई डोंट केयर। अब आप उसको नहीं कह सकते, मालिक ने पॉलिसी बना दी, आप उसको कहते सर इस तरह की पॉलिसी मुझे नहीं मंजूर, मुझे आपने बताना है। तो वो उसके वो के चलो तुम कौन होते मेरे से पूछने वाले। वो तो यही कहेगा ना कि आप कौन होते पूछने वाले, मैंने कह दिया डोंट केयर, डोंट केयर। अब आपने सर्किट बनाया है, क्या बनाएंगे। अगर आप इंजीनियर हैं, आपने लो कास्ट सर्किट बनाना। लो कास्ट सर्किट कब बनेगा, अगर मैं इसको वन अज्यूम करूं फिर क्या मुझे लगाना पड़ेगा, अगर इसको मैं जीरो अज्यूम करूं फिर मुझे क्या लगाना पड़ेगा। जार महंगा या और महंगा है। जार में तो आप देखें ना दो एंड गेट्स होते हैं और पता नहीं क्या क्या सर्किट होता है। जार इज नॉट ए सिंपल गेट है, दैट्स व्हाई आई सेड इट्स नॉट ए सिंपल गेट, उसके अंदर काफी चीज। तो अगर इसको मैं वन करूं तो मुझे और लगाना पड़ता है, तो मुझे किसके साथ आसानी और, तो मैं इसको वन करके सर्किट बना देता हूँ, मैं इसको वन करके सर्किट बना देता हूँ। तो अगर वो दोनों बैठते हैं गाड़ी चलानी पड़ेगी ना, ठीक है ना, तो गाड़ी चल पड़े। अगर वो चली जाती है कोई शिकायत कर देता, सर हमने देखा था दोनों बैठे हुए थे गाड़ी जा रही थी, तो आप कहेंगे आपने तो कहा था डोंट केयर है। मालिक का उम्मीद है तो आप दो गाड़ियां रखें दोनों के लिए, ए के लिए भी और बी के लिए भी। यहाँ पर जो है ना वो गाड़ी एक ही है ना, मसला ये है। वरना तो मीर मालिक तो दोनों को एक एक गाड़ी लेके देगा ना। ये अभी छोटी कंपनी है, लम्स नहीं है ये, छोटी कंपनी है। यार मैंने कभी आपको कहा है कि एक प्रोफेसर हैं दो जो गाड़ी में बैठ सकते हैं, प्रोफेसर जहांगीर और प्रोफेसर शाहिद मसूद, गाड़ी एक की वजह क्या है? नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं है, नहीं ये भी नहीं है, कितने यार आप मासूम हैं? नहीं ये भी बात नहीं है। क्या नहीं है गेट और ड्राइवर, हाँ ये भी नहीं है। वो मामला वहीं पे आया, मसला यही है कि लम्ज वालों ने हमें कोई गाड़ी प्रोफेशनलों को नहीं लेके देती। आप लोग कितने भोले हैं। गाड़ियां में अपनी जेब में से लेनी पड़ती है भाई। लम्ज वाले नहीं, फिर गाड़ी होगी उनकी तो वो पॉलिसी बनाएंगे ना, वो तो गाड़ी तो है ही नहीं है उनकी, ना हो कार ना हो पॉलिसी, ना बजे ना हो बांस ना बजे बंसरी, ठीक है ना जी। तो बेसिकली जो है ना बात यहाँ पे खत्म होगी कि ये तो कई ऐसे फंक्शन आएंगे आपके पास जिनमें ना वो अनडिफाइंड हो। तो इज अनडिफाइंड फॉर सम वैल्यूज इज कॉल्ड इनकम्प्लीटली स्पेसिफाइड फंक्शन। तो उसको जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप डोंट केयर को अज्यूम कर लेते हैं वन, जिससे आपका छोटे से छोटा सर्किट बन जाए। ये नहीं सारे वन कर लें, कई दफा सारे वन करने से नुकसान होगा, कई दफा होगा कि सारे वन करने से नुकसान हो जाएगा। तो करें, हाँ ये देखिए एक एग्जांपल मेरे जहन में आई। फर्ज करें ये वन है और ये जीरो है, ये पॉलिसी है, ये डोंट केयर है। अब मैं क्या करूं, अगर इसको मैं वन करता हूं फिर मुझे क्या लगाना पड़ता है, आर गेट।